Hello dear student, myself Dr. Amit Kumar Singh. Today we will be discussing about the EDTA method, that is your part 2 of the water chemistry chapter, that is module number 4 of AKU syllabus. So let us continue the part 2. So EDTA, in EDTA method, it is a method which is used to find the temporary and the permanent hardness. And in this method we go for the titration. In titration we take EDTA in a burette. This is your burette. आप क्या करते हैं burette में EDTA लेते हो. We take EDTA in the burette, EDTA, and in downward there is the presence of the conical. There is conical present where it is water, that is your H2O, that is your water, and that is impure water. For example, impure water is there. So it is a complexometric titration. It is a complexometric titration, and in that titration we are using, so in every titration we generally use an indicator in order to find the end point. Where end point comes, then the color of the indicator changes. So indicator is generally used in order to find the end point of the titration, कि आपका कहाँ टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया, कहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया. फॉर एग्जांपल आपने HCl लिया और नीचे बेस को टाइट्रेट करो, चाहे बेस ऊपर लिए आपने नीचे एसिड लिया है, तो आपको टाइट्रेशन कर रहे हो, तो टाइट्रेशन में एंड पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए वो इंडिकेटर यूज हो जाता है. ठीक है. सो इन EDTA मेथड वी टेक NH4Cl and NH4OH. दिस इज अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज ए बफर सोल्यूशन. ये बफर सोल्यूशन के लिए यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द pH ऑफ द 10. ये pH कितना पे मेंटेन करने के लिए, 10 मेंटेन के लिए. तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा कि इन ऑर्डर टू मेंटेन pH 10 व्हाट आर द सॉल्ट्स you have to use. तो ammonium chloride and ammonium hydroxide we are using. ठीक है. So if a standard hard water contains, for example, 1 mg calcium carbonate in 1 ml, 1 mg calcium carbonate in 1 ml, then let V1, V2, V3 are the volume of EDTA used. So these are the, we are just giving a starting point in order to use this EDTA on for the numerical. So V1 is the volume of the EDTA used against standard hard water. Standard hard water मतलब जो भी एक standard hard water आपको दे दिया जाएगा, and for example let us the V1 with the volume of the EDTA against that water, and V2 is for volume of EDTA against hard water. Against hard water we can say, or we can say unknown water, unknown hard water. And V3, this is in the square, V3 is for after boiling the hard water. जो भी आपको हार्ड वाटर को बॉयल कर दीजिएगा तो जो भी आपका उसमें बचेगा वो परमानेंट हार्डनेस होगा. एंड लेट दैट बी विद द V3. तो टोटल हार्डनेस इज नथिंग बट इट इज योर V2 और V1, एंड परमानेंट में V3, क्योंकि हमारा परमानेंट में आफ्टर बॉइलिंग वी आर टेकिंग V3. तो ये हो गया आपका. सो टेम्पोररी कैसे निकालोगे, टोटल हार्डनेस माइनस द परमानेंट हार्डनेस. सो लेट अस टेक अ वन न्यूमेरिकल, देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट एंड हाउ टू यूज दिस. फॉर एग्जाम्पल 20 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इज गिवन टू यू इन ए कॉनिकल which is containing 15 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर. वो अगर जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर आपको दिया गया, दैट कंटेन 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 1 लीटर, and that 20 ml requires 25 ml of the EDTA, and 100 ml water sample, that is your impure water, is given, that required 18 ml, and after boiling it is requiring only 12 ml of the EDTA. यहाँ 18 आपको यूज हो रहा है, देयर वाज यूजिंग ऑफ द 18 ml, अब आपको 12 यूज हो रहा है, यानी कि उसमें से क्या होगा, कुछ इम्प्योरिटीज हट गए. तो आफ्टर बॉइलिंग ऑब्वियसली क्या होगा, जो भी कार्बोनेट वाले होंगे या जो भी टेम्पोररी हार्डनेस होंगे वो आपका क्या होगा, हट जाएगा. सो लेट 1 लीटर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इज कंटेनिंग 15 ग्राम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट. तो आपका 1 ml में निकाल लीजिए. 1 ml में 1 लीटर में 15 ग्राम है, तो 1 ml में कितना होगा, 15 mg कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा. समझ गए. 1 लीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन में दिया है 15 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर. सो therefore I have written 1 liter standard hard water is equivalent to or containing 15 ग्राम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट देयर इन 1 ml, तो आपका 15 mg हो जाएगा. लेट इट बी इक्वेशन नंबर फॉर एग्जांपल 1. एंड वी हैव टू गो फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA. कि EDTA का स्टैंडर्डाइज कैसे करोगे, तो वहाँ पे दिया कि 20 ml स्टैंडर्ड गिवन स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के लिए आपको 25 ml EDTA जरूरत पड़ता है. So I have just written in before, to 25 ml of EDTA is equivalent to 20 ml standard hard water को लिए टाइट्रेशन में जरूरत पड़ता है. Then for 1 ml EDTA 20 by 25 into 15 mg of the calcium carbonate. Then you will ask where this 15 mg of the calcium carbonate came. So it is nothing but it is 20 ml of the
स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, तो 20/25 कर दिए, तो इसको आप 20 ml को आप नहीं लिख सकते ऐसे करके, 20 यू कैन राइट आल्सो एज 20 इंटू 1 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। तो 1 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में भी आपने निकाला है, यहाँ पे देखिए ऊपर में 1 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इज इक्विवेलेंट टू 15 mg ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। तो वही मैंने 1 ml यहाँ पे ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की जगह पे क्या लिख दिया 15 ये, तो आपको इससे आ जाएगा 12 mg ऑफ द कैल्शियम कार्बन। तो 1 ml इज इक्विवेलेंट टू 12 mg ऑफ द कैल्शियम कार्बन। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। देन फॉर कैलकुलेशन ऑफ द टोटल हार्डनेस, तो वहाँ पे दिया कि 100 ml के लिए आपको कितना यूज हो रहा था 18। देन आफ्टर बॉइलिंग वो आपको 12 ml यूज हो रहा था। तो देखते हैं कैसे निकालना। तो 100 ml हार्ड वाटर इज नीडिंग 18 ml ऑफ द EDTA, therefore 1 ml, therefore in 1 ml 18/100 and that is your ml EDTA। तो 1 ml EDTA में आप में देखो 1 ml EDTA में कितना है था 12, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया 12 mg गुना कर दिया है, समझ गए। यहाँ पे इस तरह अगर आप देखोगे या 1 ले लो आप, 1 ml EDTA कितना होगा आपका 12 mg कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो इसीलिए मैंने क्या किया 1000 ml में निकाल दिया, दैट इज आल्सो वी कैन कॉल इट इन 1 लीटर। तो आपने 1 लीटर में टोटल आपका गया 2106 ppm आपका इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है टोटल हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस फिर कैसे निकालेंगे, 100 ml के लिए 12 लग रहा था, कितना 100 ml बॉइल्ड हार्ड वाटर आफ्टर बॉइलिंग, दैट वाटर इज कॉल्ड एज द बॉइल्ड हार्ड वाटर और यू कैन आल्सो कॉल्ड एज द बॉइल्ड वाटर, दैट इज रिक्वायरिंग 12 ml ऑफ द EDTA। तो 1 ml में कैलकुलेट कर लो आप, तो 12/100 फिर वही 1 ml EDTA, हमें पता है 12 mg कैल्शियम कार्बोनेट हमने पहले देखा था क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद मुझे मिला कितना मिला 14440, 1440। तो टोटल हार्डनेस हमको पता है 2160 माइनस 1440 घटा दो 2720 इज द टेम्पोररी हार्डनेस, तो आप निकाल सकते हो। तो दिस इज अनदर क्वेश्चन that you can practice, as I have already given the PDF in the before, and in fact in the YouTube channel I will also try to provide the PDF so other can also have a glance on it, those who have outside. So this question you can try by yourself, it is nothing as same as the above question. So coming to the lime soda base formula and the numerical, so एक होता है कि लाइम सोडा मेथड से भी हम वाटर का वो कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसमें पूछेगा आपको कितना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द लाइम वाटर और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सोडा इज यूज्ड इन ऑर्डर टू फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ 5000 ऑन अ लार्ज स्केल बेसिस। द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 5000 लीटर में कितना यूज होगा, 4000 लीटर में कितना यूज होगा, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, लेट मी इरेज इट सो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड यू। सो lime water, so this is the calculated part 74/100, you have to remember this formula 74/100 into temporary कैल्शियम आयंस का वो जो भी होगा टेम्पोररी, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दिस ऑल कम्स इनटू द टेम्पोररी हार्ड वाटर, टेम्पोररी causing या टेम्पोररी impurities, plus this is the plus sign with 2 into, this is nothing but this is your 2 into temporary magnesium ions plus permanent magnesium, iron and aluminum, then after plus carbon dioxide plus H plus ions if there is presence, for example अगर आपको HCl दे देगा तो क्या होगा, तो H plus का भी आप कैलकुलेट करोगे, then the bicarbonate है तो bicarbonate जोड़ोगे, and this is nothing but this is the minus part, this is your minus part, minus you will subtract everywhere, you will add but you will subtract in the case of the, remember it, so सोडियम एल्यूमिनेट के केस में हमें क्या करना है, माइनस करना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट एंड वेयर इन द एवरी पार्ट वी हैव टू ऐड इट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट टर्म। तो दिस इज 100/% ऑफ द प्योरिटी। आपको लाइम 70% में देगा, 80% प्योर रहेगा, तो आपका 80% ऑफ द लाइम विल बी यूज्ड ना, आपका 100% तो दिया ना, वो 80% है, बाकी 20% इम्प्योर है, तो आपका सिर्फ 80% ही लाइम काम करे, भले वो 10 ग्राम दिया तो उसमें कितना होगा, 10 ग्राम में 8 ही ग्राम यूज होगा इफ इट इज 80% प्योर। देयरफॉर in formula it is 100/% of purity, okay। so 100 upon for example 80%, then 80, 100/90, if it is 100/100 then obviously it will be 1 into, this is the complete volume, for if they will ask for the find the in 5000 liter and it is 1 divided by 10 to the power 6, so these all are calculated into the mg, so I have converted mg into kg, so therefore 1 divided by 10 to the power 6 I have added, and in soda they will ask soda required
So this is your purity. So it is there, it was 74 by 100. You have to remember here it is 106 by 100, 106 by 100. And permanent of the calcium, magnesium, aluminum, iron. So all these will be included. Only permanent will be included here, plus H plus, and the you have to subtract it. Here again you can remember it. There is one more minus in the soda lime, minus, as it was in that lime case it was minus sodium aluminate. Here it is minus bicarbonate into 100 divided by the percentage of the purity. Then again the same as the above. So let us see one question, then you will understand in a better way. A sample of water containing all these impurity, magnesium bicarbonate, calcium nitrate, calcium chloride, ठीक है, calcium chloride, magnesium sulfate, magnesium bicarbonate, calcium nitrate, and calculate the quantity of the lime, that is 74% pure आपका दिया है. Lime 74% pure is given and the soda is 90% pure. In order to soft for removing of the water of the 5000 liter, and this is on the large scale 5000 liter of the water. तो हमें सबका पहले क्या करना पड़ेगा, सबका निकालना पड़ेगा. mg मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इतना दिया है, पहले आप इसका इक्विवेलेंट निकाल लो. मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो मैग्नीशियम का 12 दूनी 24, हाइड्रोजन का 1 है तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया मैंने. कार्बन का 12 दूनी 24, तो ये 16 48, 48 दूना 96. तो आपका टोटल 146 इज द मोलिकुलर वेट ऑफ योर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. then this will be divided by the 2, this will be divided by 2. Why it will be divided by 2? Because of the n factor. This is the charge on the magnesium is +2. So you have to either take the total charge on the cation part or total charge on the anion part. So I have divided by the 2. So you get the equivalent weight. Once you divided the molecular weight by the n factor, then you get the equivalent weight. This is your equivalent weight. That came to the 73. 73 is its weight is given. This is weight divided by the equivalent weight. Okay, equivalent weight into the 50. This is the equivalent weight of the calcium carbonate. Then these can be calculated. These all have been calculated. 50, 200, 100, 100 are the respectively ppm. So coming to the lime required, 74 by this is the formula. So 2 into magnesium bicarbonate. As you can see, there is no calcium. Temporary calcium is not there. So it is permanent. Calcium chloride is permanent causing, and calcium nitrate is also causing permanent. तो हमें यहाँ के क्या बच गया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. तो यहाँ पे क्या लिख गया है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. तो जब भी मैग्नीशियम का आप टेम्पोररी लिख रहे हो तो आपको क्या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और जो मैग्नीशियम परमानेंट है उसको एक बार प्लस मैग्नीशियम सल्फेट परमानेंट करता है. ठीक है, बाकी फॉर्मूला लगा के 2 × 50 दिया हुआ इसका, 50 इसका दिया हुआ और आपको इसका 100 दिया. देन यू कैन कैलकुलेट इट. सो यू विल गेट 1 kg of the lime is required. 1 kg lime is required. For soda, 106 divided by 100 into permanent of the calcium, magnesium, iron, aluminum. This is the formula, and whatsoever is given is there, you will add it. For example, calcium carbonate आपको दिया है, calcium nitrate दिया हुआ है, ये सब इसमें आएंगे. तो आप बोलोगे सर कि ये कैल्शियम, तो वो फॉर्मूला के अनुसार हमें देखना है. जो भी परमानेंट है, हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट परमानेंट कॉज करता है, कैल्शियम नाइट्रेट परमानेंट कॉज करता है, मैग्नीशियम सल्फेट वो परमानेंट कॉजनेस करता है वाटर में. तो ये सब इसमें आ जाएगा. इंटू 100 बाय परसेंटेज ऑफ प्योरिटी. तो आपका 200 दिया है, 100 इसका, और कैल्शियम नाइट्रेट का आपका 100 हो गया. तो इस तरह से आप निकाल लोगे. देन द टोटल सोडा विल बी रिक्वायर्ड 2.35 kg. ओके, सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, यू कैन ट्राई इट. As I will also attach the PDF, so it will be better for you to practice the questions. These are the questions. So coming to the water softening topic, softening of the water. There are the 3 methods through which we can soften the hard water, can be softened. That is zeolite method, and another name is also permute. ये आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा. कभी कभी zeolite के जगह पे आपको permuted process भी पूछ सकता है. So you have to just have a glance on this word. And the another method is lime soda, as we have done the numerical of this lime soda method. And another is annexation. तो इस पे आपका पूछेगा, आपको short notes पूछ सकता है. Write the short notes on this part. इस पे lime method पे आपको numerical पूछेगा, ठीक है. ओके, numerical पूछेगा on this also. They will ask the write the short notes on the ion exchange method. Okay, this is not. So coming to the zeolite process, and zeolite are the capable of exchanging its sodium ion with the cations which is producing hardness. जो भी
वाटर में हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है उसके साथ क्या करेगा, इसका जो फॉर्मूला जियोलाइट का है, जियोलाइट का फॉर्मूला आप देखिए यहाँ पे क्या है, जियोलाइट का फॉर्मूला आपका है Na2O सोडियम ऑक्साइड Na2O Al2O3 डॉट X molecules ऑफ द सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 सिलिका ऑक्साइड एंड Y molecules ऑफ द वाटर्स। और X क्या होगा, 2 से 10 के बीच में से, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, जो भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, जो भी हो 2 से 10 के बीच में होगा। एंड Y नंबर ऑफ द वाटर 2 से 6 के बीच में। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल, कोई भी पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द जियोलाइट। यू इट मे बी आस्क्ड इन objective questions of the 2 marks or 1 marks. So what is the principle? In principle, for example, in water this is causing the hardness, for example calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate, calcium sulfate, these all are causing hardness। ये सब क्या कर रहा है, हार्डनेस कॉज कर रहा है ये सब। तो इसमें क्या करते हैं, सोडियम ये ऐड करते हैं, जियोलाइट करते हैं, उसमें क्या होता है Na2। तो दिस आई हैव टेकन दिस पार्ट एज Na2, दिस पार्ट एज Z, दिस पार्ट Na2, इसकी जगह क्या कर लिया हमने, Z ले लिया, जियोलाइट को रिप्रेजेंट कर दिया, तो Na2Z लिखा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जियोलाइट का बाइंडिंग कैल्शियम के साथ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, देयरफॉर दिस विल बी बाइंड विद कैल्शियम विल बाइंड विद दिस पार्ट ऑफ द जियोलाइट एंड इट विल गेट सेटल्ड एंड दिस सोडियम विल कंबाइन विद द इट्स बाइकार्बोनेट, तो विच विल गिव सोडियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम उसी तरह आपका क्या होगा, मैग्नीशियम इसके साथ कंबाइन कर जाएगा जियोलाइट के साथ, कैल्शियम किसके साथ कंबाइन करेगा, जियोलाइट के साथ कंबाइन कर जाएगा। So once the zeolite is used, then again you have to regenerate the zeolite. So in order to reuse कैसे प्लास्टिक का रीयूज होता है, आपको कलेक्ट करके फिर उसको प्रोसेस करके रीयूज करके, उसी तरह आपको जियोलाइट को भी रीयूज करना है। Once it get used, then its water softening percentage decreases और we can say इसका क्या होता है, वो कम जाता है, ठीक है। So for regeneration we are using 10% brine solution, जो भी आपका यूज्ड हो गया जियोलाइट, तो आप अगर उसको 10% if you will treat used zeolite with 10% brine solution, कभी पूछेगा what is brine solution, brine solution nothing but it is the solution of the NaCl, 10% NaCl, ठीक है। तो यूज्ड जियोलाइट को हम लोग सोडियम क्लोराइड के साथ ब्राइन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे, then again it will give you Na2Z। so this is the regenerated zeolite which is ready to be used for the next cycles। तो वो अब आके आपका कैल्शियम क्लोराइड क्या बन के क्या होगा, वो साइड में हट के निकल जाएगा। so this again can be reused। so they will ask what is the formula or what is the chemical equations for the regeneration of the zeolite, that is calcium Z plus brine solution that is NaCl, then it will give Na2Z, okay। so what are the, this is one important question, what is the advantage of zeolite, हार्डनेस इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रिमूव, ठीक है। हार्डनेस क्या होता है, कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है, ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल होता है, ठीक है। मशीन्स यूज जियोलाइट प्रोसेस ऑक्यूपाई लेस स्पेस की जरूरत उसमें पड़ता है, जियोलाइट एडवांटेज है, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द जियोलाइट, ओके। लेस टाइम इज रिक्वायर्ड, लेस स्किल, लेस मैन पावर स्किल्स, मतलब कोई भी मजदूर है उसको लेस स्किल है, देन कैन आल्सो ही कैन डू इट जियोलाइट मेथड। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ स्लग्स, SLUDG स्लग्स जो भी है आपका, वो फॉर्मेशन नहीं होता, जिसे आपका पानी का टैंक होता है उसमें क्या होता है, वो साइड से सीमेंटेड टाइप बन जाता है। तो इन दिस केस इन जियोलाइट मेथड दिस इज नॉट फॉर्म, so it is also one advantage। but coming to the disadvantage of this zeolite method, only we can remove calcium and magnesium salts, the calcium and magnesium particles causing the hardness of the water। सिर्फ आप जियोलाइट से कैल्शियम और मैग्नीशियम को ही हटा सकते हो और कुछ नहीं हटा सकते जी, ठीक है। ट्रीटेड वाटर कंटेंट मोर सोडियम, तो जो, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि जियोलाइट में क्या होता है, जियोलाइट Na था, Na2Z, तो आपका ये क्या होगा, सोडियम आयन वाटर में चला जाता है, देन द सोडियम सॉल्ट कंटेंट्स का तो आपका बढ़ जाता है। एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस इफ द वाटर इज टर्बिड, इसका लिमिटेशंस भी है जियोलाइट मेथड का, दे कैन आल्सो आस्क व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द जियोलाइट। तो जियोलाइट का लिमिटेशंस यही है कि इफ वाटर इज टर्बिड मतलब वो क्या होता है, मतलब उसमें व्हाइट का वो रहेगा, तो वो क्या करेगा, आपके पोर्स को, जियोलाइट के पोर्स को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। कैसे, वो हमारे पोर्स होते हैं स्किन में, हमारे डस्ट आ जाता है, देन इट गेट क्लोज, सो वी हैव टू रिमूव, यूज द सोप इन ऑर्डर टू रिमूव दिस डर्ट। इन द सेम मैनर टर्बिड वो क्या करेगा, उसके होल्स को, उसके पोर्स को क्या करेगा, तो जियोलाइट उसको क्या करेगा, उसको ब्लॉक करेगा, देन द इट्स इफेक्टिवनेस विल डिक्रीज, उसका इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एज मिनरल एसिड इज, क्या होता है, वाटर एसिडिक भी होता है, अगर उसमें एसिडिक वाटर, इफ मिनरल्स एसिड्स आर प्रेजेंट, देन दे विल डिस्ट्रॉय योर जियोलाइट, वो आपको जियोलाइट को क्या करेगा, खराब कर देगा। सो दीज आर द लिमिटेशंस
contains 1 to zero sodium. If water contains large quantity of the iron, magnesium, then zeolite is converted into the this much. अगर आपके वाटर में if your water is containing iron, जैसे कहते हैं कि हमारे पानी में आयरन ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो आयरन जियोलाइट बना देगा. जब सोडियम कैल्शियम जियोलाइट बनता है देन कैन बी रीजनरेटेड. कैल्शियम अगर है वाटर में जियोलाइट के साथ कंबाइन करता है दैट कैन बी रीजनरेटेड. बट वंस इफ यू आर हैविंग द आयरन इन योर वाटर and that will obviously replaced by the zeolite, but once the zeolite is used but that cannot be reused. वो एक ही बार यूज होगा जियोलाइट आपका. अगर आपके पानी में आयरन है तो दोबारा नहीं हो सकता. अगर आपके टंकी में पानी है तो जियोलाइट मेथड एक ही बार यूज कर सकते हो, दोबारा उसको नहीं यूज कर सकते हो. ठीक है. सो यू हैव टू गो फॉर अनदर मेथड. दूसरा मेथड आयन एक्सचेंज. आयन एक्सचेंज मेथड बहुत ही कॉस्टली है, आप बड़े लेवल पे उसको मतलब नहीं कर सकते. दैट इज टू मच कॉस्टली. सो there is only one option is left, that is lime and soda methods. Therefore the numericals comes on the large scale water, 5000 liter, 10,000 liters. Okay, then coming to the another notes, that is ion exchange process. So I will complete this portion also, so it is for a little bit longer portion. So ion exchange resin which have high molecular weight, ये क्या होता है, उसका molecular weight resin का क्या होता है, ज़्यादा होता है. insoluble cross link organic polymers, ये this is organic polymers, linked organic cross linked organic polymers containing functional group which are responsible for ion exchange properties depending upon the functional group. There are the two types. तो उसमें क्या होता है, कभी पूछेगा आयन एक्सचेंज क्या होता है, क्या है सर, ये रेजिन होता है जी, उसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है और फिर इट इज अ पॉलीमर काइंड ऑफ द इनसॉल्युबल पॉलीमर ऑफ द क्रॉस लिंक्ड ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है जी. ये दो तरह के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट. Okay, that is cation exchange resin. एक होता है anion. The cation exchange resin consist of acidic functional group like C double bond OH, SHOH. ये सब क्या होगा आपका, ये सब functional group. They are capable of exchanging its H plus ion. तो इसका H plus ion क्या होता है, ये सब they are capable of exchanging. Therefore it is coming into the category of the cation exchange. ठीक है. Denoted by RH. ठीक है. RH से इसको डिनोट करेंगे. एग्जाम्पल ऑफ द cation exchange resin आपका हो गया जियो कार्ब, एम्बरलाइट, IR 120, डोवैक्स 50. These are the examples of the cation exchange resin. So coming to the anions. Anions में क्या होता है कि वो हाइड्रोक्सी ग्रुप वो रखते हैं. जैसे वहाँ पे आपका था एसिड पार्ट था, उसमें H प्लस वो करते हैं. ठीक है. उसी तरह इट कंसिस्ट ऑफ द बेसिक फंक्शनल ग्रुप. वहाँ पे एसिडिक फंक्शनल ग्रुप था, C डबल बॉन्ड OH, SO3H था. उसी तरह यहाँ पे NH2 डबल बॉन्ड NH2 आता है. ठीक है. इट हैज हाइड्रोक्सी ग्रुप फॉर द एनायन एक्सचेंज. वहाँ पे H प्लस एनायन एक्सचेंज का काम करता था, यहाँ पे OH माइनस का, तो माइनस का इसीलिए क्या होगा एनायन एक्सचेंज रेजिन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R प्लस OH माइनस, वेयर इज R प्लस इज स्टाइन मतलब वो जो भी आपका पॉलीमर हो गया. फॉर एग्जाम्पल एम्बरलाइट 400. ठीक है. एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच दिस इट वर्क्स व्हेन हार्ड वाटर इज पास थ्रू द कैटायन एक्सचेंज कॉलम, ऑल द कैटायंस आर टेकन अप बाय द रेजिन. ये क्या होता है कि एक हम कॉलम लेते हैं, उसके द्वारा वो हार्ड वाटर ऊपर से पास करते हैं. वो पूरा कॉलम क्या होता है, वो कॉलम जिसे ये कॉलम है फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो नोब लगाता है, इसमें ये सब भरा रहता है, ये सब भरा हुआ है. तो वाटर से क्या करते हैं, पास करते हैं. तो जब वाटर पास करते हैं तो वो एक्सचेंज हो जाता है. वो जो भी आपका इम्प्योरिटीज होगा वो ले लेगा, ये हाइड्रोजन H प्लस उसमें चला देगा. जैसे ये हो गया RH प्लस है, अब मैग्नीशियम, तो देन मैग्नीशियम विल कंबाइन विथ योर रेजिन्स. ओके, सी दिस magnesium get combined with your cation exchange के साथ, वो रेजिन के साथ कंबाइन कर जाएगा. देन दैट विल लीव H प्लस. ये क्या करे, अपना H प्लस छोड़ देगा इसको. ठीक है. दिस इज फॉर एग्जांपल विथ कैल्शियम एंड विथ द मैग्नीशियम. ऑल कैटायंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर. ऑल कैटायंस, ऑल काइंड ऑफ द कैटायंस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द आयन एक्सचेंज. दिस इज द वन एडवांटेज, बट इट इज टू मच कॉस्टली. सो दीज आर द लिमिटेशंस आल्सो. So note, after cation exchange the water is passed through the anion exchange also. भाई कैटायन करने के बाद फिर आप एनायन क्यों कर रहे हैं जी, ऐसे थोड़े चलेंगे. ऑल एनायन लाइक क्लोराइड सल्फेट्स आर एक्सचेंज्ड एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ OH आयन इज रिलीज्ड. तो जैसे फिर उसको एनायन एक्सचेंज में क्या हमने रिप्रेजेंट किया, ROH माइनस है, तो सल्फेट को रिप्लेस कर देगा आपका, ये इसको ले लेगा, आप उसको OH दे दोगे, और OH H प्लस के साथ वाटर में कंबाइन करके अपना पानी बन जाएगा. So then after every cycle of the cation exchange resin, you have to go for the anion exchange resin also in order to remove chloride and sulfate, all kinds of the anions present in the water. Thus water becomes free from all kind of the anions.
The H plus ions which have been came from the after the cationic exchange reaging and OH minus from the anion exchange reaging, these two get combined in order to form the water. So in fact this is also not producing any kind of the cations and anions. तो रीजनरेशन भाई आप तो यूज तो कर लिए, वो कैटायन एक्सचेंज रेजिन यूज कर लिए वो महंगा वाला, आप तो फिर इसको रीजनरेट कैसे करेंगे? तो रीजनरेट करने के लिए फॉर एग्जांपल यूज्ड, तो आपने कैल्शियम के साथ कंबाइन कर लिया तो उसको हमको फिर H प्लस लाना पड़ेगा। तो फ्रॉम डाइल्यूट HCl से क्या करेंगे, इसको हल्का सा वॉशिंग दे देंगे पूरे उसको, किसको, जो भी कैटायन एक्सचेंज है उसको H प्लस से क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl से उसको वॉश कर देंगे। देन अगेन दिस HBl विल कंबाइन, दिस इज योर रीजनरेट कैटायन एक्सचेंज। ठीक है, तो H प्लस के डाइल्यूट HCl से यहाँ कर देंगे और यहाँ सोडियम NaOH से कर देंगे। देन वी गेट द रीजनरेटेड anion exchange reagin, regenerated cation exchange reagin. So this is one important question that can be asked. Okay, so you have to go through it. यहाँ पे HCl यूज करते हैं, यहाँ पे anion में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, बस यही ध्यान रखना है। It is already 25 minutes, so let us go. So now coming to the previous questions, these I have just completed all the previous questions from 2019 and 2000. So I will link these questions also, as I have already provided to my students, those who are from that outside. I will also try to provide if I will possible to attach it. So these are the previous year questions of the AKU, and these are the 2 marks questions. If I have also done few questions, solved few questions. So water chemistry questions, these are the for 2016. So solved question papers, how exhausted ion exchange can be regenerated. I have just before 1 minute I have just gone for it, so I will not go for it. So exhausted zeolite can be, obviously this is exhausted, ये उसको क्या करते हैं, ब्रांड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट कीजिए, then you can regenerate it and you can get it. So you can try it. The presence of the carbon dioxide in boiler should be avoided. Why? You have to go it for it. So why is water softened by zeolite process unfit for the use in boiler? तो ये क्यों ये अनफिट है? Acid radicals are not removed. zeolite में क्या होता है, आप सिर्फ कैल्शियम और सॉरी अब in zeolite method we are just capable of removing calcium and magnesium. हम सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटा सकते हैं, but we are not able to remove the acid radicals and acid part, for example H plus and all those things are not removed by this process. Bicarbonate present in the hard water get converted into sodium bicarbonate. वो किस में कन्वर्ट कर जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट. Such water used in boiler caused high alkaline. तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो that is sodium bicarbonate is what? Sodium bicarbonate is nothing but it is NaH. Though I am writing with the mouse, so the writing will be not so good. It's all going to the lockdown due to we are going through the online classes, YouTube channels and all those things. So though we are trying to get better through the ads, I am just using the laptop and in front of there is a camera in order to record it. So bicarbonate will produce the alkaline, high alkaline will be produced in your, which lead to the caustic embrittlement, boiler corrosion. वो क्या होगा, वो बाइकार्बोनेट होगा, वो सोडियम बाइकार्बोनेट, वो पानी के साथ कंबाइन करके क्या करेगा, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द NaOH. ये आपका क्या बन जाएगा, NaOH बनेगा. ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनेगा, विच इज हार्मफुल टू द, वो आपका बॉयलर कोरोजन कॉज करता है. तो मैं कोई भी पूछेगा कि क्यों नहीं यूज करना, ये होता है, तो वो बॉयलर को कोरोजन करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द हाई अल्कलाइन, वो सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करता है. अनदर क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन टेम्पररी हार्ड वाटर इज बॉइल्ड. तो जब भी आप किसी भी टेम्पररी हार्ड वाटर को बॉयल करते हो क्या होगा, व्हेन इट इज हीटेड देन द फॉर एग्जांपल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो वो क्या होता है, वो सेटल कर जाता है, वाटर बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इवोपरेट कर जाएगा. हीट करने के बाद क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है. देन यू कैन फिल्टर इट और वी कैन सेंट्रीफ्यूगेट इफ इट इज स्मॉल पार्टिकल्स, देन यू कैन फिल्टर इट बाय क्लॉथ एंड ऑल दोस थिंग्स. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स. Describe removal of the hardness of the water by exchange ion methods. I have already discussed before. So in determining the total hardness of the water, indicator is used, EBT indicator is used. Blue in color. So they are asking what is the color. So it is blue in color when it gets free. Before that it is red, wine red color. When it is combining with the then when it gets free after the complete titration, its color gets converted into blue. So they are asking of the 2 marks question. Why buffer solution during titration of the EGA is added. So for buffer solution, ammonium chloride and the
ammonium hydroxide is used for buffer solution pH10, at that pH10 only EBT is working well. Buffer solution is added to maintain the pH 10 as all reaction of the cation and EDTA are pH dependent. वो pH किस लिए मेंटेन करता है? These all are pH dependent, मतलब pH पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम pH उसको मेंटेन करते हैं. At pH 10 the end point of the titration is accurate, मतलब 10% pH पे आपका क्या होगा? टाइट्रेशन हम क्या होगा? बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा. इसीलिए भाई हम pH मेंटेन करें कि ये टाइट्रेशन का EDTA है और इसका टाइट्रेशन का साथ आपको क्या चाहिए? pH सेंसिटिव रिएक्शन है, इसीलिए pH मेंटेन करते हैं और शार्प एंड पॉइंट मिलता है. वी गेट अ शार्प एंड पॉइंट. ओके, so this is the advantage to in order to maintain the pH 10 by the sodium chloride and the sodium hydroxide. Permanent hardness of water is caused by the soluble salt of कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड ले लो, कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट ले लो, तो यू जस्ट रिमेंबर क्लोराइड एंड सल्फेट. ठीक है, फॉर परमानेंट हार्डनेस. General formula of the zeolite, as I have already discussed the general formula of the zeolite. This can be also represented by Na to Z से represent करते हैं general. Hardness of the water contained here, this is one numerical, small numericals. Numerical on alkaline. There are also chances, though it is already 30 minutes, I will just take 2 or 3 minutes more. This is the, I think, last page. Numerical on the alkaline. 100 ml of the raw water, the titration with N by 50 H2SO4 required 24 to 12.4 ml of the acid to phenolphthalein. Phenolphthalein indicator है end point and 15 ml of the same acid at the methyl orange. जब इसका उसके साथ करते तो कितना आता है? 12.4 रिक्वायर करता है phenolphthalein एंड पॉइंट के लिए, और यहाँ पे 15 रिक्वायर करता है सेम एसिड के साथ. व्हेन वी आर यूजिंग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर. Then determine the type and extent of the alkalinity present. Alkalinity कितना present है? तो हमें बस देख लेना है वो टाइट्रेस N1, जैसे हम लोग N1 V1 बराबर N2 V2 करते हैं वाटर का, तो N1 इंटू V1 बटा N2 इंटू V2. N2 आपका इधर एसिड पार्ट हो गया, इधर आपका वाटर हो गया. N1 इंटू 100 आपको दिया, वो 100 ml है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 ml है, हमें उसको वाटर का नॉर्मेलिटी नहीं पता है. N1 इंटू 100 इक्वल टू 1/150 आपको दिया हुआ N by 50 H2SO4, इधर HCl का है, इंटू 12.4. यहाँ से आपका नॉर्मेलिटी निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, यहाँ से आपका N1 निकल जाएगा. एट मिथाइल ऑरेंज में क्या चाहिए? 15 ml है, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? यहाँ से आपका